नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरटीबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? दोनों नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abarya Kujambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, Nepal continues to burn. There's no agreement as yet on the interim government. They say we want the assembly to be dissolved first. And lots and lots of other things happening at the moment. The most important thing, मोदी जी भागवत जी का जो किस तरह तारीफ की है, उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल सबसे बेहतरीन कार्यकाल है आरएसएस के 100 साल के इतिहास में। एंड इट्स नॉट रॉन्ग व्हाट ही सेज। Yes. बट देन इट वाज अ यूनाइटेड एफर्ट, चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, अलग अलग चीज जो उन्होंने किया। एंड probably Modi also had a great role to see that RSS was never as strong as this before, like this before. So credit for both of them. They work together to see प्रदीप that जी अगर अभी की बात the agenda of RSS BJP thrives. और अगर अभी की बात करें कि I don't know whether to take it as a joke or whether to take it as a coincidence. Fact remains कि अभी चंद्रग्रहण लगा, सबसे बड़ा चंद्रग्रहण सालों में। Yes. और उस चंद्रग्रहण ने 4 प्राइम मिनिस्टर्स की विकेट ले ली सर। नंबर 1 जापान के प्रधानमंत्री, उन्होंने रिजाइन कर दिया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री, उनको रिजाइन करना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री, उनको भी जाना पड़ा। फ्रांस के प्रधानमंत्री, उनको भी जाना पड़ा। 4 प्रधानमंत्री चले गए, ये कहा जाता है। Yes. लेकिन उसके पीछे एक और है सर, एक साजिश की भी बू आ रही है। There is a conspiracy here. You remember the Arab Spring? Yes. The Arab Spring, Yes. Tunisia. It all began with Tunisia in 2017 and spread to other countries like Libya, Egypt, Yemen, Syria, and Bahrain. And it's social media which was used. Social media was used to create political unrest, social unrest, violence, as a result of which rulers who had been around for a long time, all had to go, including Assad in Syria, Muammar Gaddafi in Libya, and of course in Tunisia, and even in Bahrain and Yemen. Is that same thing being done in Nepal? And the speculation is, are they going to try and do that in India? I mean, world over, sir, minority governments cannot exist at all. There's always an overthrow. Any country where a minority government is there and disliked by the people, it goes off. Here, whatever Sanjay Raut kare or Congress kahe कि there will be a Nepal kind of a revolution. That will never happen. That can never happen. वाला नहीं है साहब. Because you got the majority here, you got a sizable majority with Narendra Modi, and he not dislike the opposition leaders dislike him. But the majority people love him also. Second thing is जिस प्रकार से अलग-अलग चीज the vice president election again जिस प्रकार से हुआ, and the most important thing is the cross voting जो हुआ, cross voting, और cross voting की वजह से NDA को फायदा हुआ. Around 15 votes that broke away from the Congress came to NDA. Third is the SIR. भले राहुल गांधी जी बार-बार कह रहे क्रॉस वोटिंग हो गया, they are even something sometime political, आप क्या इसको बोलेंगे, it doesn't sound good. Mature politics नहीं हो रहा कि राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन also क्रॉस वोटिंग हुआ, वोट चोरी हो गया. वोट चोरी आप कैसे कह सकते हो? It was a fair vote. It is your people. It is your people who. If you can't control your people, then that's your problem, not anybody. तो आप कैसे किस प्रकार से वोट चोरी हो? यहाँ पर भी वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हुआ. Manipur is a big issue. Fantastic Prime Minister going there tomorrow. 8,500 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स वो इनॉग्रेट करने वाले हैं. एंड जो बार-बार लोग कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कब जाएगा मणिपुर, अगर ये एक फॉरेन कंट्री होता अभी तो साहब ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बड़ी देर हो गई, जब नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं. भाई जा रहे हैं यार. और जो टिप्पणी करना कि अगर फॉरेन कंट्री होता तो अब तक चले जाते. ये भी है. No, which is not untrue. Which is by the way that entire allegation or charge against the Prime Minister or accusation against the Prime Minister is not really true, because but the fact remains, I personally believe that rightfully speaking the Prime Minister or the Home Minister should have called for a meeting of or leaders
of various parties in parliament, and they should have briefed them that this is the problem as far as Manipur is concerned. As I've been saying again and again and again over here, we are the third largest producer of heroin in the world as far as Manipur is concerned. So, and there are about 4 or 5 nations which are involved there. It is a very, very, very tight situation. Even now it's a delicate situation. Just because the violence is abated doesn't mean that the situation is over. The other place which really is in a crisis, Pradeep ji, आज की तारीख में जिसमें बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है वो है पंजाब. पंजाब में जो फ्लड आया है, पंजाब में बाढ़ की वजह से सूरत हाल ये है that Punjab has not experienced such floods in the last 70 years, and the last time there was a big flood in Punjab was in 1988. 1988 के बाद काफ़ी बड़ी बाढ़ यहाँ पर आई है, लेकिन वो बाढ़ भी इस तरीके की नहीं थी. In fact, there is speculation to the effect that this could also be part of a Chinese weather experiment, which has actually changed the weather over India. And this has been going on now for the last 20-30 years, where the Chinese have been trying to use the weather for defense or offense purposes. But that's in the realm of speculation. At the moment, the fact is Punjab really needs help. Or I'm very, very happy to say the whole of Bollywood has come forward. Everybody's come forward, whether it's Salman Khan, Diljit Dosanjh, or Sonu Sood, or Randeep Hooda, or all the Punjabi actors and everybody else, and of course all the political parties. Wherever they can, they're all helping. सीधी सादी बात है, क्योंकि देखिए साहब ऐसा है, जहां पर पूरी दुनिया में कोई भी क्राइसिस होता है, सबसे पहले सरदार पहुंचते हैं, सबसे पहले सिख पहुंचते हैं वहां पे, सबसे पहले खालसा पहुंचते हैं और सबसे पहले वहां पे किचन शुरू करते हैं ताकि लंगर हर एक को खिला सकें, हर एक को मतलब तकलीफ ना हो. They are the first to reach, and now they need help. I hope everybody reaches over there. I think all our guests are connected. We have a lovely panel today. Let's go straight across to them. After a long time, Gurjot Singh Keer Sahab. Gurjot Singh Keer Sahab, Sat Sri Akal. How are you, sir? सत श्री अकाल जी, नमस्ते, जय महाराष्ट्र. Namaste, Jai Maharashtra, sir. Or Gurjot Singh Keer Sahab is joining us for the first time after having joined Eknath Shinde Sahab. Anyway, Gurjot Singh Keer Sahab, lovely having you on the show. Thank you so much, sir. Thank you very much. Lakshman Saji Sahab, namaskar. नमस्कार. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. कैसे हैं सर? बस फर्स्ट क्लास. Wonderful, आप sir. सबको नमस्कार, हमारे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, आपको प्रदीप भाई, आरके जी. क्या बात. नमस्कार सर. And Nizamuddin Rain साहब, निजाम साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. निजामुद्दीन रईस साहब कांग्रेस का झंडा लेकर के चल रहे हैं न जाने कितने सालों से, और आज तक कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, और उम्मीद करता हूं आगे भी कांग्रेस के लॉयलिस्ट ही रहेंगे. लेकिन सबसे पहले गुरजोत सिंह कीर साहब, आप खुद पंजाब में थे. मैं आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट देख रहा था, आपने बहुत वहां पे सेवा करी, लोगों की बहुत काम किया. जरा बताएंगे उसके बारे में सर. उसके बाद पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन पहले पंजाब की स्थिति क्या है, आपने खुद वहां पर क्या देखा, अपना आंखों देखा हाल जरा आप सुनाएं प्लीज. गुरजोत सिंह कीर साहब. पंजाब की सबसे पहले बात करूं तो एक मिसकंसेप्शन जो पूरे इंडिया में फैल गई थी कि पंजाब में बारिश बहुत आ रही है, पंजाब में फ्लड है. आता मी मुंबई का रहे तो बारिश क्या होती है ये सबसे अच्छी हमको पता है जी. दुरुस्त बात. तो वहां पर जो हो रहा था वो तो थोड़ा सा मतलब कैसा ना कि बस हम मुंबई में जैसे निकलते ना रहे, नहीं पानी बरस रहा थोड़ा बहुत चलो जाके आते हैं, तो वैसी वहां पर बारिश थी. वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि बादलों से पानी आया या जैसे मुंबई में बारिश होती वैसी बारिश हुई, वैसा बिल्कुल भी वहां पर नहीं था. ये जो पानी है वो पूरा डैम का पानी है, और आज तक जिसकी वजह से 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की स्टार्ट हुई, जो नींव रखी गई, आज भी 2025 में देखने पड़ रहा है कि आज भी पंजाब की वो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है कि जो भाखड़ा नंगल इकलौता डैम है पंजाब के पास, उसका कंट्रोल पंजाब के पास नहीं है. सो जब भी हमको पानी चाहिए तभी हमको पानी नहीं मिलता है, और अब हमको नहीं चाहिए था तो हमको इतना पानी दे दिया कि हमारे कम से कम वहाँ पर 2,500 से 3,000 गाँव डूब गए हैं. कम से कम वहाँ पे 3 लाख एकड़ जो जमीन है, जो खेती थी, वो खेती खराब हुई है 3 लाख एकड़, और नहीं करके एक 8 से 10 लाख लोगों की लाइफ पे ये इम्पैक्ट आया है, जिसमें से 60-70 कह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 300-400 लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी है जी. कीर साहब, जिस प्रकार से मोदी साहब जो रिस्पॉन्सिबल लोगों ने एरियल व्यू जो लिया था, तो उनका क्रिटिसिज्म बहुत होने लगा. बोले एरियल व्यू क्या है, एरियल व्यू यानी फ्लड टूरिज्म, या फ्लड टूरिज्म कर रहे हैं. डू यू थिंक दैट ये इतने कैजुअल टर्म ऑपोजिशन जिस प्रकार से सत्ताधारी को प्रश्न उठाते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है,
क्या एरियल व्यू लेना ठीक, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट राइट, आप उसको फ्लड टूरिज्म कह रहे हैं, फ्लड टूरिज्म, हाउ डू यू सी द इंपैक्ट विल हैव, क्या क्या व्यू है लोगों में? लोगों की बात बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है और लोगों को भी वैसी बात है पंजाब में कि मोदी जी को जो एरियल व्यू चाहिए था उसके लिए शायद वो आर्मी, मिलिट्री या वो वेदर डिपार्टमेंट से या वहाँ के जो लोग हैं, जो जिला अधिकारी है, वो जो काम करना वहाँ पर चाहते, शायद उनको अगर एरियल व्यू दिखाते तो वो सही रहता। प्राइम मिनिस्टर का एरियल व्यू वहाँ पर करके 2 घंटे के लिए वो वहाँ पर आए थे, तो भले मैं आज जुड़ा उनकी पार्टी से, बट मुझे वो नहीं अच्छा लगा पर्सनली, और वहाँ के लोगों ने भी इसकी निंदा की है। और वहाँ पर तो एक ऐसा माहौल है कि मोदी जी नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आने से वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुई है, फ़ायदा कम हुआ है। जी, लेकिन गुरजोत सिंह कीर साहब, आपने भाखड़ा नंगल की बात करी, जहाँ तक भाखड़ा नंगल डैम का सवाल है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर है, वो दिल्ली के अंदर आता है। राइट। और लेकिन यहाँ जो मैंने सुना है, भाखड़ा नंगल डैम का जो होल्डिंग एरिया है, जो आर्टिफिशियल लेक जो बनाई है भाखड़ा नंगल डैम की, क्या हुआ है, अब आप सुधार कर दें सर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, ये सुनने वाली बात है, सौजी साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब, ये सुनने वाली बात है। वहां पर क्योंकि ड्रेजिंग ठीक ठाक तरीके से नहीं हुई है, उस होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से वो जो आर्टिफिशियल लेक है वो बहुत जल्दी भर जाती है, एंड देन यू हैव टू ओपन द स्लूज गेट्स, यू हैव नो चॉइस, नहीं तो वो बांध जो है वो पूरा बांध तोड़ ताड़ के आगे निकल जाएगा पानी। इज दैट करेक्ट सर? सर 3 रिवर है पंजाब में जी। 2 तो पाकिस्तान में चले गई, 3 भी इंडिया पंजाब के पास बची है। तो सर एक लेक पे ऊपर अगर वो बात डाल रहे हैं कि जैसे थोड़ा ये मीडिया ने मिसकंसेप्शन फैलाया है, एंड नेशनल मीडिया का काम है जानबूझ के जब कुछ होता है दिखाना कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बीइंग इन द गवर्नमेंट टू, आई क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। एक छोटा सा लेक था, 3 रिवर का पानी तो नहीं रोक सकता है। नॉट पॉसिबल, तो क्वाइट ट्रू। ऐसा बोलना कि जी, तभी से बोल रहे हैं ना, वो थीन डैम कब से चल रहा है, थीन डैम का जो मैटर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की आपने जिक्र किया, आई हैव कवर्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार, आई वाज देयर, in fact I was there, I was possibly one of the very few journalists, there were just 4 journalists over there, 5 actually, including Brahma Chalani, he has now become a security and strategic expert, myself, there was Mark Tully, and then there were 2 others, including one guy who was just been shot, who was shot and killed 2 years later. This was way back in 1984. तब से अब तक पानी को लेकर के पंजाब की समस्या चल रही है सर। अब आप मुझे बताइए, लोगों ने तब भी सजेस्ट किया था, भाई आप जो पुरानी लेक्स हुआ करती थी, पुराने वेल्स हुआ करते थे, पॉन्ड्स हुआ करते थे, जो हमारे होल्डिंग एरियाज थे, अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड जो थे पंजाब के, वो अगर आप दोबारा रिवाइव नहीं करोगे तो एक दिन डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। ये मैं 1983-84 की बात कर रहा हूं। तब से पीपल लाइक डॉक्टर गुरबचन सिंह, they used to say this at that time. Great man, he's dead now, he was awarded the Padma Shri also. So why do you think nobody listens? गुरजोत सिंह कीर साहब कोई सुनता क्यों नहीं है, आप बताएं। तो ऐसा है कि पंजाब की एक गलती भी है कि जब भी गवर्नमेंट आती है, आप देखो जो नेशनल गवर्नमेंट होती है पंजाब हमेशा उससे उल्टा चलता है, और मे बी दैट इज द रीजन कि आज तक पंजाब को राइट्स नहीं मिले। एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि जो भाखड़ा नंगल डैम है उसके राइट्स पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, क्योंकि पंजाब के पास एक एग्रीकल्चर है जहाँ से उसकी इकोनॉमी चलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ तो पहले काफ़ी थी, अब थोड़ी कम हुई है। जैसे झारखंड का एग्जांपल ले, झारखंड में बिहार में कोयला आता है तो वहाँ पर जो बिजली का कोयला का पैसा है वो स्टेट को मिलता है। और पंजाब स्टेट की भी जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, उनकी डिमांड है, पहले कांग्रेस की भी वहाँ पर थी, अकाली दल भी थी, तो जो गवर्नमेंट आई उन्होंने डिमांड किया था कि ये जो तीनों रिवर है वो तीनों रिवर ओरिजिनेट पंजाब से होती है। तो अगर पंजाब को ये जो पानी है उसका पैसा मिले, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की राइट पंजाब को मिले इंस्टेड ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोलिंग इट, सो वो पंजाब की स्टेट को आगे लेके जाएगा। और अगर शायद पंजाब को ये चीजों के पैसे मिलते तो ये डैम की हालत अच्छी होती, पानी डिस्ट्रीब्यूट होता, जैसे पहले राजस्थान पे काफी इल्जाम लगाया गया कि पानी छोड़ने नहीं दिया। नाउ दिस इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट इन फैक्ट इज आस्किंग फॉर वाटर। यस, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी नहीं छोड़ा? दुरुस्त बात, हिमाचल में आज फ्लड है, जी है, दिल्ली के एरिया में थोड़ा बहुत फ्लड है, ज्यादा नहीं है, दिल्ली में मैनेजेबल है, हरियाणा में भी फ्लड है, मैनेजेबल है। सो ऐसा नहीं है कि पूरा हरियाणा या पूरा दिल्ली या पूरा हिमाचल में ज्यादा इफेक्ट है, पंजाब में सबसे ज्यादा इफेक्ट है, पर राजस्थान में वो पानी भेजा जा सकता था क्योंकि ये डैम बनाया था
टू केटर द कैनल्स ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में नहीं है पानी ज़्यादा, तो पंजाब हमेशा इट हैज़ बीन अ वाटर गिवर टू वाटर शेयर टू राजस्थान। तो राजस्थान को पानी देते तो शायद वो भी खुश हो जाते, पंजाब भी खुश हो जाते, बट कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा लेकिन लगता है भगवान कि सिंह मान तो वहां चले गए थे सर, मुख्यमंत्री जी तो भाखड़ा नंगल डैम के ऊपर चले गए थे, वो तो कंट्रोल रूम के अंदर चले गए थे। उनका क्या, अगर तूने एक बूंद पानी भी दिया उधर तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कहा गया था। जब बाढ़ नहीं है, बाढ़ की स्थिति जब नहीं थी तब ये हुआ था। But all I'm saying is that at the end of the day, we should have anticipated this. Let's be very clear. It has taken a long time in coming. it is the mistake of both the central and the state government, but the Sir- sufferer is again 1600 सर एक करोड़ सेकंड, प्रदीप जी एक सेकंड, जस्ट वन स्मॉल थिंग। आप जैसे चंडीगढ़ है, आप लोग पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, मुझे मालूम नहीं है, लक्ष्मण साहू जी साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब, चंडीगढ़ के सामने वो जो सुखना लेक है उसके साथ में क्या है सर, जहां पर भी पानी, ब्यास रिवर है, अब जहां पर भी पानी होता है ना, वहां पे साथ में एक फ्लड प्लेन होती है पानी की, कि जब बाढ़ आती है पानी में, वो दैट गोज, सो दैट रिवर वाटर कैन गो देयर व्हेन द रिवर स्वेल्स अप ड्यू टू द रेन। और जब उसमें ज्यादा पानी होता है, आपने क्या किया है, आपने वो लैंड बेच दिया है बिल्डर्स को, और बिल्डर्स ने वहां पर अपने होटल्स बना दिए हैं, इतने लग्जरी अपार्टमेंट्स बना दिए हैं, कॉटेजेस बना दिए हैं, तो सर पानी एक ना एक दिन तो आएगा ही। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में आप देखें 50-50 60-60 करोड़ के फ्लैट हैं एक एक बिल्डिंग में, उसमें पानी घुसा है, बिकॉज देयर इज नो फ्लड प्लेन लेफ्ट, वेयर विल द वाटर गो। पहले जो गुरुग्राम का जो पानी होता था वो सारा का सारा खेतों में जाता था, आसपास गुड़गांव का पानी जो था, अब सारे खेतों में बिल्डिंग बन गई है, कहां जाएगा। सेम थिंग इन दिल्ली एंड द सेम थिंग राइट आउटसाइड आवर विंडो राइट हियर, मिठी रिवर। Mithi river floods every year, and every year all the slums fill up with water because they are built on the floodplain of the Mithi river. You have to leave the floodplain. Sir, the rivers are trying to tell us something. अब तो इनफैक्ट ये बात आ रही है कि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो हैं वो तो बहुत ही जल्द मैप से ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर 2 साल के बाद यहां पर इस किस्म की भीषण बाढ़ आती है। So which is terrible. But I hope people are working hard to provide relief to people. Pradeep ji, आप कुछ कह रहे थे, 1600 please. करोड़, यू आर सेइंग द प्राइम मिनिस्टर एरियल विजिट, आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि फ्लड टूरिज्म कर रहे हैं, 1600 करोड़ मोदी साहब ने रिलीज कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों से, गुजरात से फ्लड रिलीफ पे ट्रेन्स भेजा जा रहा है, मेडिसिन भेजा रहा है, पूरे देश से वहां पर फ्लड रिलीफ के एवरी स्टेट अपना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां निभा रहे हैं। तो फॉल्ट कहां पर आ रहा है गुरजोत जी? सेंटर इज एक्टिंग, स्टेट्स आर एक्टिंग, सब लोग तक एवरी बड़ी रिलीफ मेजर्स लेके पहुंच गए वहां पर। सर जो भगवंत मान ने डिमांड की थी दैट वाज 5000 करोड़ फ्रॉम द सेक्टर। सेकंड थिंग, जो SGPC इज अ वेरी पावरफुल यूनिट इन पंजाब जो सब गुरुद्वारा को कंट्रोल करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, टू कवर द लॉसेस वी विल एटलीस्ट नीड 20,000 करोड़ का पैकेज। तो सर 20,000 करोड़ के सामने 1600 करोड़ तो बहुत छोटे हैं। एंड कहीं ना कहीं चलो, हम ऐसी एक कम्युनिटी है, मुझे याद है 2001 में जब भुज में गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो मेरे पापा वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पर सेवा की थी। मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था जब केरला में 2018 में फ्लड आए थे। सर इतने गंदे लोग थे वहां के, इतने गंदे लोग थे, जो 20 रुपए की बिस्लरी है वहां पर 200 रुपए की और 500 रुपए की बेची गई है। और यही चीज हमने पंजाब में देखी कि दुकान वाले वहां पर पानी, बिस्किट और जो चीजें हैं खाने पीने की, सर वेफर के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सर पंजाब में फ्री में दे रहे थे। आप पैसे लेकर जाओगे ना अगर आपको खरीदनी है, वो पैसे नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे नहीं यार 3 वास्ते चाहिए ला। और सर ये एक चीज है ना जो पंजाब को थोड़ा अलग बनाती है, इस करके नहीं कि मैं एक सरदार जी हूँ, बट वहां पर जो मैंने सेवा देखी ना सर, 1600 करोड़ का तो मुझे पता नहीं कितना काम आएगा पंजाब के या नहीं आएगा, बट अभी तक मेरे हिसाब से तो इस पे एक और जीरो लगा ली दीजिए, उतने की सेवा तो वहां पर हो गई है। और जी करेक्ट है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मुंबई से गए थे, हमको वहां पर स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हम तो नेपाल तक भी, अफ्रीका तक भी सेवा के लिए पहुंच गए थे। अभी भी आप देखोगे कि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो यूक्रेन में भी खालसा एड वहां पर गया था, खालसा एड ने वहां पर भी लंगर लगाया था ताकि कोई भूखा ना मरे। और ये डिस्टर्बिंग था कि पंजाब में ना तो प्राइम मिनिस्टर जल्दी आए, दूसरी चीज ना कोई दूसरी स्टेट की एनजीओ सही, और अब तक भी वो नहीं है। बॉलीवुड यस इट हैज कम, हमारे पंजाबी सिंगर्स की बात करूं तो एक्चुअली हिंदी पिक्चरों में हीरो होते हैं, हमारे
रियल लाइफ के वो हीरो है हमारे एक्टर्स। एक एक्टर ने 100 ट्रैक्टर दे दिए, दूसरे करण औजला साहब हमारे काफी बड़े सिंगर है, उन्होंने कह दिया कि जितना भी डीजल लगेगा किसानों को, जितना भी डीजल लगेगा वो डीजल मेरी तरफ से दूंगा जो मिट्टी खेतों में जल गई है। भगवंत मान जी का एक डिसीजन आया, और भगवंत मान जी इज एन ऑपोजिशन टू मी, आम आदमी पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर है, बट स्टिल एक उन्होंने जो पॉलिसी दी कि 20,000 रुपए पर एकड़ का मुआवजा मिलेगा, लाख रुपए की मांग थी, ठीक है 20,000 कुछ तो दिया। दूसरी चीज उन्होंने एक अच्छी चीज की, जो सैंड डायरेक्शन पॉलिसी निकाली है कि सैंड को जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पैसा जो है वो फार्मर को जाएगा। तो कुछ ना कुछ रिलीफ सेंटर से भी स्टेट से भी आया है, बट दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी टाइनी। सर द बिगर पैकेज इज कमिंग। गुरजोत सिंह कीर साहब, द बिगर पैकेज इज कमिंग, बड़ा पैकेज अभी आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं। आज हम सर ये मोदी जी के 1600, बारे में ये जो 1600 करोड़ है ये इंटरिम है, इंटरिम रिलीफ है सर। ये एक्चुअली द होल थिंग विल गो अप टू, थोड़े the whole thing will बोल रहे हैं। go, whole thing will go up to 10,000 crore, 10,000 करोड़ तक जाएगा। Yes, we believe, maybe yes। आज हम कड़वे शब्द बोल रहे हैं, शायद उस दिन मीठे शब्द बोलेंगे। एंड कोई भी हो, आई बिलीव पॉलिटिक्स इट इज नॉट समथिंग कि आप अपनी गवर्नमेंट जी दुरुस्त बात है। लेट मी गो टू निजामुद्दीन रईन साहब। रईन साहब साहब क्रिटिसाइज भी करना चाहिए जी, दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। किधर बीजेपी यहाँ पर फेल हुई है, किधर न किधर आज देश की सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हुई है, आम आदमी पार्टी भी पंजाब में फेल हुई है, बट कोई बात नहीं, जो हो गया उससे हम बदल नहीं सकते, बट आई एम श्योर कि टुगेदर वी विल राइज। एब्सोल्युटली। रईन साहब, निजामुद्दीन रईन साहब, एक तो पंजाब के बारे में मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। दूसरा मैं चाहूंगा कि जहां तक कभी भी कोई बाढ़ग्रस्त इलाका होता है या कोई भी दुर्घटनाग्रस्त इलाका होता है, हमेशा वहां से जो डिमांड आती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है कम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की कैलकुलेशन एक होती है और सेंटर से पैसा जरा कम आता है। शुरू से रहे आज तक, मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसे, 40-42 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, आज तक मुझे कभी नहीं देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ डिमांड किए हों, 16,000 करोड़ डिमांड किए हों, सेंटर की तरफ से मैक्सिमम 5,000 करोड़ जाते हैं। सीधी बात है, हमेशा यही होता है। और दूसरी चीज क्या है कि ज्यादातर बाढ़ जो आती है, इंक्लूडिंग इन महाराष्ट्र में भी, वो ज्यादातर बाढ़ आती है जब डैम से पानी बाहर निकलता है, जब स्लूज गेट्स खुलते हैं तो जाकर के गांव जो हैं वो डूबते हैं। इस विषय के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या लोगों को? निजाम साहब बताएं। देखिए, मैं पूरे भारत के लोगों को सलाम करता हूं कि सरकार क्या कर रही है उससे लेना देना नहीं, लेकिन पूरे पंजाब के लिए देश का हर तबका खड़ा रहा। और हम तो समझते हैं कि जमीयत उलमा हिंद जो थी वो सबसे पहले मदद पहुंचाने में पंजाब के साथियों के लिए हरियाणा से, मेवात से, बगल के रास्तों से जितना कुछ वो कर सके, उनके शाही इमाम खुद वहाँ के हमारे जो सरदार भाई थे उनके साथ, उनके धर्मगुरुओं के साथ जो पॉसिबल था वो किया। और भारत इसी बात के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है कि हम इंसानियत के लिए कहीं भी खड़े हैं। राजनीति एक अलग चीज है, और सरदारों का तो यकीनन पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं कि वो बगैर किसी से पूछे, उनको सिर्फ पता चल जाए कि भाई दुनिया के इस कोने में भी अगर कुछ तकलीफ है तो वो पहुंचते हैं, अपनी सेवा देते हैं, लंगर लगाते हैं। मैं उनको इसलिए भी सलाम करता हूं कि इंसानियत का जो सबसे बड़ा पाठ इस देश में धर्मगुरु पढ़ाते हैं, अगर कोई बहुत 100% पालन करता है तो उसमें सरदारों का नंबर 1 पर है। मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ, कहाँ से हूँ वो एक अलग विषय होता है, लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं देश में, इसमें लोग राजनीति करने क्यों आ जाते हैं? क्यों सोचते हैं कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलेगा और यहाँ मेरी सरकार नहीं है इसलिए इनको मदद मत करो? ये सब हो रहा है जी सर। ये आप आंकड़े देखिए ना कि जहां उनकी सरकार है आप वहां ज्यादा पैसा देंगे। अरे इंसान तो अभी है ना, कभी तो आपके साथ भी खड़ा था ना। आप ये जो अभी पापा जी कह रहे हैं कीर साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस चीज को कम से कम राष्ट्रीय आपदा के टाइम सरकारों का अपना नियम बदलना होगा। वो किसकी भी सरकार हो, उसे ईमानदारी के साथ उसकी मदद के लिए जाना होगा, क्योंकि वो देश है और वो देश का प्रांत है। वहां ये क्यों देखते हो कि हमारी सरकार वहां नहीं इसलिए हम मदद नहीं करेंगे? जहां हमारी सरकार है वहां हम मदद करेंगे। आप समझिए कि जिस तरह की अभी एक बहस हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी हवाई यात्रा, देखिए मैं मान सकता हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी रोड से गाड़ी से नहीं जा सकते क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी है, वो एक व्यवस्था है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस व्यवस्था से हटकर वहां की जो जनरल काम हो रहा था उसके लिए भी तो बोलना चाहिए ना। जैसे भी अभी मुनकीर साहब ने कहा कि कलेक्टर्स ये जितने चीजें, अगर यही घटना आप देख लिए गुजरात में हुई थी, याद है आपको, जब
वहां भूकंप आया था, तो उसके लिए कटोरा लेके खड़े हुए ना सब, तो पंजाब के लिए क्यों नहीं खड़े? आप भी तो गए थे उसमें, भुज में, मुझे याद है, आप भी तो गए हमारी थे। तो पूरी टीम, पूरी आप थे, मेडिकल दत्त, टीम, सुनील वही दत्त, तो। सब लोग गए थे, याद है मुझको। Yes. हम लोग भी तो गए थे आपके साथ, हम थे ना वहां पे 2001 में। मैं वो बात इसीलिए कह रहा हूं कि हाँ। जब देश में कहीं भी आए, जब हमारे महाराष्ट्र में तकलीफ आई थी पूरा भारत खड़ा हुआ, जी हुआ। उत्तर प्रदेश में आए पूरा लातूर का भारत- जब अर्थक्वेक हुआ सब Yes, लोग आए। इसीलिए कह रहा हूं कि इन विषयों पर कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को बहस नहीं करनी चाहिए। बट ऑपोजिशन ही तो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। निजामुद्दीन अरे साहब, सर, बात कहाँ यह कर रहा है है? कि किसने कहा? एरियल सर्वे को आप फ्लड टूरिज्म बोल रहे हो, देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं बिल्कुल कि फ्लड टूरिज्म कर रहे हैं, बोलना टूरिज्म का पड़ेगा। यात्रा कर रहे हैं, तो क्या है? पॉलिटिसाइज कौन कर रहे हैं? ऑपोजिशन ही तो कर रहा है पॉलिटिसाइज। Yes, आप उसको- जब शुरू करते हैं तो सामने से भी कॉल आएंगे कि आप क्या कर रहे थे। देखिए, जो देने वाला है ना, जिसके पास फंड लगे होते हैं ना, पत्थर उसी के ऊपर आते हैं। अगर अपोजिशन नहीं करे तो ये बेलगाम घोड़ा हो जाएंगे। अपोजिशन की जवाबदारी बनती है अपने देश की जनता के लिए खड़ी रहे। क्यों अपोजिशन कहीं बाहर से आई है क्या? अपोजिशन भी तो इसी देश की नागरिक है ना, उसकी ड्यूटी बनती है। उसका घर डूब गया है पानी में और नेताजी मौज कर रहे हैं हवाई जहाज पे, तो अपोजिशन कहेगी नहीं आपको? बट ऐसे सीरियस इशू को भाई, कोई serious मजाक बना के है। फ्लड टूरिज्म बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री तो tourism सीरियस ही है नहीं है। ना। आप टूरिज्म का जिक्र किया कि टूरिज्म कर रहे हैं, फ्लड टूरिज्म। आप सुनिए नामबिहार जी, बोलिए। आपको याद होगा कि जब भी वहां आतंकवादी घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी आए और चले गए सीधा बिहार में वोट मांगने। ये इस बार भी वो बाहर ही थे, क्यों नहीं उतरते ही पंजाब तुरंत चले गए? क्यों नहीं पंजाब पर पहले डिस्कस किया? क्यों नहीं पंजाब के खास, पूरे पंजाब के लिए? मैं नहीं कहता पंजाब में मेरा राज है, या मैं बात कर रहा हूं पंजाब में, पंजाबी देश के लोग हैं ना। पंजाबी तो बगैर किसी भेदभाव के हर जगह पहुंचता है ना। जब वो हर जगह पहुंचता है देश के कोने में, चाहे वो किसी धर्म का हो, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म के अलावा वो जहां भी जब पहुंचते हैं तो देश की जवाबदारी बनती है सरकारों की कि इस तरह की चीजें, क्योंकि ये तो किसी सरकार ने तो नहीं किया था, ये तो सरकारों का निकम्मापन है कि जब उनको पता है कि डैम में पानी ज्यादा आएगा और उसके बाद छोड़ा जाएगा और ये राष्ट्रीय आपदा बनेगा, तो उसमें प्लान क्यों नहीं करते आप? क्या देश में उन्होंने इस तरह कोई प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट को दिया है क्या पिछले 11 वर्षों में? उसके पहले के भी सरकार को भी मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन पंजाब के लिए आया क्या कि भाई ये नदियां जब बढ़ेंगी और आएगा? आप बिहार को देखिए ना, वहां लगातार नेपाल का पानी आता है और वहां हमेशा हर बार डूब होती है। सरकारें किसकी भी रही हैं, तो नेशनल पॉलिसी बनाकर उसको डिसाइड तो करो भाई कि ये आपदा आएगी किसी की भी। अभी जो आदमी का घर डूबा है, क्या वो बीजेपी का नहीं था? बीजेपी का भी रहा होगा, कांग्रेस का भी रहा होगा, आप पार्टी का भी रहा होगा। ऐसे उसकी चीज पर बहस करने से बेहतर ये कि हम सरकारों पर ये दबाव जरूर बनाए कि भैया इस तरह से जो राष्ट्रीय आपदा, जी दुरुस्त बात। लक्ष्मण साहू जी, Yes, लक्ष्मण साहू जी साहब आप yes. बताएं, लक्ष्मण साहू जी साहब आप बताएं, महाराष्ट्र में भी ज्यादातर देखा गया है सर, स्पेशली पुणे में, बाकी हर जगह पे जहां पर भी फ्लड आता है, जैसे ही वो बुशी डैम भर जाता है एकदम पानी छोड़ देते हैं, फिर कुछ और डैम होता है फिर पानी छोड़ देते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, हाईवे डूब जाती है, सब कुछ डूब जाता है। सर इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए ना, मतलब आप क्या लगता है आपको, मतलब व्हाट आर वी डूइंग? मैं मानता हूं एक जमाने में पॉलिसी थी, पूरी बात सुन लें सर, एक जमाने में पॉलिसी थी कि बड़े बड़े डैम्स हर जगह पे बनाए जाएं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें स्पेन में जो बड़े डैम्स हैं उनको डिसमेंटल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग रन ऑफ द रिवर डैम्स ताकि पानी को कहीं इकट्ठा ना करना पड़े, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। आपको लगता नहीं कोई रेडिकल कोई मेथड, कोई पॉलिसी कोई बनानी चाहिए सर कि इस तरीके से जो डूब के एरिया में, जो डाउनस्ट्रीम एरियाज में है लोग, उनको इस आपदा का सामना ना करना पड़े? साहू जी साहब प्लीज। एक तो मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज बोलिए सर। पहले तो ऐसी जब आपदा आती है तो इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए, आई एग्री। ये सिर्फ बोलने का और राजनीति करने का, ये दोहरी चाल बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले हमारे कीर भाई ने जो बताया, जो समाज का जो दर्शन हुआ कि संकटकालीन स्थिति में समाज जिस तरह से मदद करने के लिए या संकट का सामना करने के लिए जिस तरह से तैयार है, उसके लिए सबको नमस्कार करना चाहिए। ये हमारा सब जगह होता है, ये हमारा स्थायी भाव है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी भारतीयता है, ये मानववादी चेहरा ये दुनिया के सब जगह पे हमारा भारत का चेहरा ढक नहीं सकता है। ये सही बात कीर साहब ने बताई। इसके लिए एक तो पंजाब के लिए अपने दिल में क्या जगह है,
भारतीयता में, भारतीय आदमी के दिल में ये बहुत बड़ी जगह है। आज भी हम जब गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, संतों के पास जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, तो पंजाब का देश के प्रति भाव, समाज के प्रति भाव, आध्यात्म के प्रति भाव, ये कोई ढकने वाला नहीं है। जी ये जो संकट आया है, संकट को किस तरफ से देखा जाना चाहिए, उस तरफ से देखने के बाद अब मुझे बहुत बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो वह हमारे प्रधानमंत्री और किस लिए गए हैं, बेशर्मी जैसे बातें होती है, वो घूमने के लिए गए, मजा करने के लिए गए, ये गलत है। इस तरह से देखना नहीं जाना चाहिए। जो आदमी का 25 साल से हम उनका काम का तरीका देखते हैं, जब सीएम भी थे और 11 साल से पीएम भी है, तो मानवता के साथ में उनका क्या रिश्ता है, उनकी जज्बात क्या है, यह देखने के बजाय पर्सनलाइज लेवल पे अपनी औकात निकालना और उनको अनाप शनाप बोलना, ये भारतीयता नहीं है और ये ऑपोजिशन भी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ क्रिकेट माइंड के लोग ऐसे बर्ताव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तीसरी बात आपने जो बोली कि इसके लिए इलाज क्या होना चाहिए, अभी जो मेरे ख्याल से नदी जोड़ प्रकल्प जो अभी आया है, जी मेरे ख्याल से पानी जहां ज्यादा है और जहां पानी नहीं है वहां पानी जाने के लिए नदी जोड़ प्रकल्प जो अभी जो शुरुआत हुई है, इतने सालों के बाद इसको शुरुआत हुई है, ये भी इसको तरफ से भी अच्छे नजर से देखना चाहिए, इसका भी स्टडी होना चाहिए। जब संकट आता है तो संकट के लिए चर्चा अलग होगी और प्लानिंग के समय होता है तो प्लानिंग की चर्चा अलग होनी चाहिए। सरकार, हम तो अपोजिशन में 50-60 साल थे ना, हम अभी 10-11 साल से सत्ता में है, लेकिन 11 साल में जो बदलाव भारत में हुआ है इसको अनदेखा नहीं होना चाहिए। यह भी देखना चाहिए, यह भी सोचना चाहिए। आज संसद में किसी भी व्यवहार में संसद के विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता है तो संसद के कामकाज में कितना रुचि लेते हैं। जब बाहर मौज मनाने के लिए जाते हैं तो ये कहां जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बाद में जब अखबारों में आता है ये कहां गए थे, किसके साथ बैठे थे, कैसी बातें हुई, कैसा एमओयू हुआ, कैसे देश के खिलाफ साजिश हुई, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं। तो संकट के समय पे ये बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम करना नहीं चाहते थे। लेकिन मोदी जी के घूमने के ऊपर अगर ये आक्षेप लेते हैं प्रधानमंत्री के नाते, संकटकालीन के नाते, कोई भी संकट आता है तो संकट के सामने कैसा देखना चाहिए, उनकी जज्बात क्या है, उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाना वो जानते हैं। जब तक बजट की बात होती है तो सब अभी प्रैक्टिकल बजट आना, प्रैक्टिकल खर्चा करना, बड़ी बड़ी बातें करने का और कुछ नहीं कुर्ती में लाने का, ये स्वभाव के लोग अलग रहते हैं। जिनको काम करना है, जिनको सही मायने में समाज का हित दिखता है, संकट का सामना करने की जिनकी नियत साफ है, वो इसके तरफ साफ नियत से देखेंगे। 10,000 करोड़ मंजूर किया, ऐसा बोलकर किसी के खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। साहब जी साहब, प्रैक्टिकल पैसा कैसा होता है हर चीज में, यह भी प्रशासन की तरफ देखा जाता है, प्रशासन देखता है और ऐसी बातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के इस संकट में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार, ये किधर भी कतई पीछे रहने वाली नहीं, ये पक्का है। लेकिन हम तो कैलकुलेशन होनी है ना उसके लिए बैठे हैं और हमको सिर्फ दबाव डालने की भाषा करने की है। इनके दबाव की जरूरत क्या है सर? अभी तो कैलकुलेशन होनी है ना। दबाव क्या है? इनके दबाव में आकर काम करने वाले लोग अभी नहीं है सर। कोई दबाव में नहीं आता सर, सबसे बड़ी बात है इनका दबाव कौन सुने? इनकी क्या हैसियत, कांग्रेस की हैसियत क्या है? क्या विश्वास आ रहा सर? सबकी हैसियत बहुत अच्छी है, अगर वो हिंदुस्तानी है तो उसकी हैसियत है। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर, आप बंद करिए और शेर की खाल पहनने से गधा शेर नहीं बनता है। शेर की खाल पहनने से कांग्रेस का शेर की खाल पहने के गधा कभी शेर नहीं होता है। समझ लो, आप क्या अगर हैसियत की बात करेंगे तो आपकी हैसियत खुद नहीं है। आप क्या बात करेंगे? मोदी जैसा सरकार है, राहुल के सामने खड़ा नहीं हो, सरकार है, आप क्या कर रहे हो?
आप बदतमीजी की बात जहाँ अगर आपकी करेंगे सरकार है वहाँ आप कैसे और आप कैसे पेश आ रहे हैं? वो देखो पहले। मैं जब तुम राष्ट्रीयता के खिलाफ सुन रहा हूँ, तुम राष्ट्रीयता आप के किसकी खिलाफ हैसियत नारे की बात लगाएंगे, करेंगे? आप भारत कांग्रेस के के खिलाफ हैसियत सब की जमाने बातें में नहीं खड़े करेंगे। होंगे। तब भी आप और भिखमंगे लीडर और जैसे ऑपोजिशन घूमते थे। हमारे आप भी आप भिखमंगे हमारे हमारे कांग्रेस ने थोड़ी देश को अनदेखी दिया, करने सब कुछ से दिया। तुम्हारा लीडर कांग्रेस बन गया थी ऑपोजिशन जिसने का। आपको देश में नहीं दिया। तो कांग्रेस आपकी तरह कटोरा लेके ऑपोजिशन दल भिखमंगी बोलती भी नहीं रहेगी आगे। और मोदी जैसा डरपोक और घटिया आदमी अरे इस देश को आप कभी छोड़ो। सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, एक मिनट, लक्ष्मण सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, अरे लक्ष्मण सावजी साहब, शर्म की बात है हम लक्ष्मण सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी देश का गद्दार है, पूरी गद्दार गांधी फैमिली देश की पाकिस्तान गद्दार है। जाते हो, जितने और ये भी ऑपरेशन वाले नहीं है, ये देश की सिर्फ पाकिस्तान ऑपरेशन नहीं है, खबर चुनते हो ये और political गद्दारी operation दूसरे नहीं को लगाते हो। है। ये गांधी अरे फैमिली तुम देश की गद्दार फैमिली है। मतलब अभी राष्ट्रद्रोह करने वाली गांधी अभी फैमिली ये बात हो रही थी, राहुल की क्या बात क्या करते हैं? बहस करेंगे आप कांग्रेस पर? अभी ये बात हो रही देश के साथ थी गद्दारी करने के लिए पैदा हो गए हो। कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होना गद्दार चाहिए। है, बाकी कौन? कांग्रेस का नेता पूरी देश के साथ बीजेपी गद्दार है। सिवाय गद्दारी के और क्या है? की खाल पहनने से अगर गद्दार घेरना गद्दार होता नहीं है। तो सारे याद दलितों रखो। को क्यों जमा किया? सावजी साहब, निजामुद्दीन जी, अरे कांग्रेस को आपसे दूसरा लक्ष्मण सावजी साहब, फैमिली से अरे निजामुद्दीन जी, 2 मिनट रुकिए, सावजी साहब, देने से पहले कांग्रेस इस देश का इतिहास है, वो इस देश को मोदी जी आजाद जैसे करती है। आदमी को आप अरे अंग्रेजों की जनता दलाली ने नहीं उनको कर छीन के सकती। दिया है। अंग्रेजों के तुम्हारे तलवे जैसे भूत चाटने कैप्चरी वाली करती नहीं है वहाँ पे आरएसएस यही काम कांग्रेस करती रही है। नेहरू और गांधी अरे सावजी साहब और निजाम साहब, निजामुद्दीन जी, 2 मिनट, सावजी नहीं चलेगा। साहब, सावजी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जा रहे हैं, सावजी साहब, सावजी साहब, मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर मणिपुर, राहुल गांधी सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, प्राइम मिनिस्टर करते हैं यहाँ के कल मणिपुर जा रहे हैं, कल मणिपुर जा रहे हैं, सावजी, जब बात अरे निजामुद्दीन जी, 2 मिनट, संकट की चल रही है, निजामुद्दीन जी, जब बात पंजाब में संकट निजामुद्दीन जी, 2 मिनट रुकिए ना, निजामुद्दीन जी, 2 मिनट रुकिए, ये देश का गद्दार राहुल निजामुद्दीन जी, गांधी 2 मिनट रुकिए, हम नहीं सुनेंगे। निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन 2 मिनट, निजामुद्दीन जी, 2 मिनट रुकिए ना, देशद्रोह करती है वो बात कर रहा है। पूरे गांधी लक्ष्मण सावजी साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब, साहब, दोनों साहब, दोनों साहिबान से मेरी विनती है, ये नहीं है, मेरी विनती है आपसे, उल्टी सीधी बात करता है। प्रधानमंत्री के बारे में एक गधा कुछ भी बोलेगा, लेकिन सर, दुनिया का कोई सावजी साहब 1 मिनट, जो आपने जो बोलना था सर, हमारे प्रधानमंत्री जी को सर आपने जो बोलना था इस सब्जेक्ट पर बोल लिया। आप 1 मिनट सावजी साहब प्लीज, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी है वो, प्रधानमंत्री जी इज्जत से बात होनी चाहिए। कैसा औकात क्या है? लक्ष्मण सावजी साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब, वाले कांग्रेस का प्रवक्ता, कैन आई रिक्वेस्ट यू जेंटलमैन, कैन आप आई जो है सर, आप तो सभ्य तरीके से बात देश के लुटेरे करें। हैं आप, देश को सर, मैं सीटी बजाऊं क्या? आप लुटेरे सीटी बजाऊं? लूटा है आपने। Gentlemen, can I have a moment of silence? आप सिखाते हो। Time out, आप विषय पे please. चर्चा Time करो। out, please. सावजी Time साहब, out. can I accept? नहीं नहीं हाँ, सर, होगा एक नहीं। मिनट। ये नहीं चलेगा सर, आप मोहन विषय पे भागवत जी चर्चा पे बात करो। कर ले। विषय अगर पे आपको चर्चा करो आप। सर, अगर आपको इतराज ना सावजी हो, साहब, मोहन भागवत पे आ जाओ, राहुल, विषय मोहन पे भागवत चर्चा करो जी, ना। मोदी साहब ने मोहन भागवत जी का तारीफ किया है। सावजी साहब, 2 मिनट बोलिए ना, सुनिए सुनिए, मोहन भागवत जी का तारीफ मोदी साहब ने ऐसा किया कि एक ऐतिहासिक समय था जब मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख बने और इतना सारा काम आरएसएस का हुआ। 100 साल के इतिहास में मोहन भागवत जी का काल सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। यह मोदी साहब किस प्रकार से तारीफ किया, उसमें थोड़ा रोशनी डालिए। साहब जी साहब, मोदी साहब आरएसएस प्रमुख का तारीफ करना। साहब जी साहब, साहब, हाँ राजीव साहब, हाँ, जी बोलिए सर। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, साहब विषय पे चर्चा होगी, विरोधी विचार वाला आदमी चलेगा, लेकिन जिसकी उसकी हैसियत में रहना चाहिए। साहब जी साहब, मिले ना, इसको आगे बढ़ते ना। साहब जी साहब,
साहब साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी रुक गया वापस चालू हो जाएगा। खुद को पहचाना, हम कौन है, खुद की पहचान होनी चाहिए पहचान कभी। आप- ये फिर चलो क्या देश से आया? अरे आप निजामुद्दीन जी, प्रधानमंत्री हैं, क्या है आप? निजामुद्दीन जी जरा ये फिर चालू साहब इसमें मोहन भागवत जी पे बात करते हैं। मोहन भागवत देखो जी, साहब, मैं विषय पे चर्चा करूंगा, आप विषय पे विषय पे कीजिए। चर्चा होने दो। निजामुद्दीन जी, आप कितना दलाल नहीं रहे। नहीं निजामुद्दीन विषय जी, पे जरा चर्चा रुकिए करो। ना। आपको भी अच्छे से पता है, 20 साल पत्रकार रहे ये इस राज्य में। निजामुद्दीन जी ये- जरा उनको उत्तर तो दे आप दो मोहन हैसियत भागवत जी बताइए। के बारे में। आप मोहन इनको- भागवत जी, इनको मोहन- भारत मोहन भागवत जी का भारत में कॉन्ट्रीब्यूशन, सब मोहन भागवत जी, अराजकता फैलाने की है। बस नहीं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मोहन भागवत जी पे चर्चा करते हैं। आप आरएसएस से जुड़े हो लक्ष्मण साहू जी साहब, आरएसएस से जुड़े हो। मोदी साहब ने मोहन भागवत जी का काम को बोला सबसे अच्छा काल है 100 साल आरएसएस के इतिहास में, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज साहू जी साहब, प्लीज रिक्वेस्ट। साहब आरएसएस के संगठन, आरएसएस जैसा संगठन पूरी दुनिया में 100 साल चलने वाला संगठन और देश के प्रति निष्ठा रखने वाला संगठन 100 साल से लोगों ने देखा है। इतनी आपदाएं आए, इतनी बैन की कई बार उनके ऊपर लगने की कोशिश हुई, लेकिन आज भी 100 साल के बाद पंजाब में नहीं RSS दिखा आरएसएस, आफत तो वहां अरे पर तो है। अभिमान से बोलने दो गुरुदेव जी, पंजाब में please, तो please, आरएसएस दिखा क्या- नहीं उनको सर। क्या बोल रहे प्लीज लेट मी टॉक। क्या बोल रहे ये चोरों की टोली के लोग बीच में क्यों बोल रहे थे? अरे गुरुदेव जी, आरएसएस की चर्चा चल रही है, बात अगर आप अपने शब्दों चोरों की टोली का बीच में क्या काम तो है? हम भी आपको उसी की भाषा जवाब अरे देंगे। निजामुद्दीन जी को अरे अरे आरएसएस की चर्चा में चोरों की टोली का क्या काम है? अरे क्यों निजाम क्यों क्यों कोई चोर है सब? ये जो बात चोरों कर रहे की हैं, वो टोली चोर का है। क्या काम है? अरे निजामुद्दीन जी को आरएसएस की बोलने तो चर्चा दो। में उनको आप बोलने किसी तो दो। दूसरे के प्रवक्ता को चोर कैसे कहेंगे? अरे- अगर वो कोई सवाल कर रहे हैं तो आपके हैसियत तक आप उनको चोर कहेंगे? अरे देखो- निजामुद्दीन जी फिर बात को भटकाओ रोहित यार, साहब, निजामुद्दीन की तरफ बात तो करने दो उनको। अरे लेकिन वो करने वाली गलत कांग्रेस कैसे की टोली है अभी कैसे से। चोर कह सकता है? ना ना ठीक है, इनको- आगे बढ़ते आगे इनको- बढ़ते आगे बढ़ते आरएसएस साहब साहब आगे बढ़िए। आरएसएस ने इनको ठिकाने पे लाके रख दिया है। साहब जी आगे बढ़िए, आगे बोलिए ना भागवत जी पे बोलिए। साहब बात ऐसी है, हाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक पहले से डॉक्टर हेडगेवार जी, गोरवलकर गुरुजी, राजेंद्र सिंह जी, सुदर्शन जी, जी बीच में बाबा साहब देवरस थे जी अपने गुरुजी के बाद में, जी और अभी मोहन जी भागवत है। 100 साल में जितने संघ चालक हुए उनके तरफ देखने के बाद उनका कोई स्वार्थ उसमें नहीं था। उन्होंने संघ ने जो एक विचारधारा अपनाई है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति जो विचारधारा है, वो विचारधारा का जो भगवा ध्वज प्रतीक माना जाता है, वो भगवा ध्वज को गुरु मानकर जो संगठन चालू है उसने किसी व्यक्ति विशेष को गुरु माना नहीं है। इसलिए विचारधारा के प्रतीक को गुरु मानकर जो संगठन चल रहा है, आज देश भर में लाखों स्वयंसेवक जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में काम के लिए जाता है, जो गुजरात में जन्म लेता है लेकिन केरल में काम के लिए जाता है, जो दिल्ली में जन्मता है लेकिन वो कन्याकुमारी में जाता है। तो ये भारतीयता जो विशेषता है हमारी, जो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है और भारत का स्वाभिमान है, इसको जगाने के लिए ये जो संगठन चालू है, मोहन जी भागवत जिस समय से अभी संघ चालक, मुख्य संघ चालक है, उनका दायित्व जब उनके ऊपर आया है तो उन्होंने जिस तरह से संघ को जनताभिमुख किया है, जिस तरह से सब तरीके के लोग संघ के साथ जुड़ रहे हैं, संघ की विचारधारा अपनाई जा रहे हैं। कहीं जब संघ देश का जो एजेंडा होता है, राष्ट्रीय जो एजेंडा होता है, उसके साथ संघ रहता है। जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलती है तो संघ उसका समर्थन करेगा। बात ऐसी है कि राष्ट्रीय विचारों को तिलांजलि देकर जो संगठन चले हैं, जनता ने आस्ते आस्ते पहले स्वतंत्रता के नाम पर चुनाव हुए, उसके फायदे ले लिए गए, लेकिन बाद में जब विचारधारा का समय आया तो भारतीयता का विचारधारा, भारतीयता का विचार जनता ने अपनाया है, स्वीकार किया है। और ये मोहन जी भागवत जी के संघ चालक के यशस्विता है, ऐसा मानता हूं, क्योंकि
आज जी पूरे पूरे राज्यों में, देश भर में, सब राज्यों में संघ की जो शाखा चलती है, संघ के जो जो लोग हैं, जो जो सत्ता में आते हैं, वो सत्ता में आना ये राजनीतिक विषय है, लेकिन संघ ने जो कहीं भी आपदा होती है तो आपदा के वहां मदद के लिए संघ के स्वयंसेवक पहले पहुंचते हैं। ये दुरुस्त तो बात। वो ये देखते नहीं है यहां हमारी सरकार है, या हमारे विचारधारा के है, या हमारे धर्म के है। जी वहां सिर्फ मानव धर्म होता है और ये संघ की असली पहचान है। सौजी साहब, संघ के एक ऊपर सवाल संघ पूछ के लूं? ऊपर आरोप कई लोगों ने कितने बार किए, आरोप तो लगते रहेंगे लेकिन सर, संघ हर एक ने पे लगते अपना हैं। काम छोड़ा नहीं है। आपसे पूछना चाहता संघ हूं ने फिर वनवासी क्षेत्र में काम होने दो, जी, विद्या क्षेत्र में काम होने दो, कल्चरल में काम होने दो, लीगल सेल में काम होने दो, मेडिकल में होने दो, कोई भी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में जो आदिवासी जहां लोग शिक्षा व्यवस्था है, एक एक गांव में एक एक आदमी 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल पढ़ाने को जाता है। सर वो तो देखा हुआ है हमने, वो तो देखा है हमने सर। ये जो संघ की उपलब्धि है, ये जो संघ की उपलब्धि है, संघ के जो प्रमुख मोहन जी जी भागवत, जी तो मोदी जी ने इसलिए कहा कि कोई संगठन लगातार 100 साल चलाना और वो विचारधारा पर, प्रिंसिपल पर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लक्ष्मण सौजी साहब, एक छोटी सी चीज है, संघ को अगर आप देखें 100 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है, पहली बार मोहन भागवत जी वो पहले सरसंघचालक होंगे जिन्होंने इस्लाम के बारे में इतनी बात करी है, मुसलमानों के बारे में इतनी बात करी है। अभी 2 दिन पहले के 3 दिन पहले उनका भाषण था जिसमें उन्होंने कहा, देखो साहब, इस्लाम यहां पर आया, हम लोगों ने गले लगाया, क्योंकि हम लोगों की, भारतीय लोगों की, हिंदुओं की प्रवृत्ति ऐसी है। सबसे पहली मस्जिद अगर कहीं मक्का के बाहर अगर बनी है तो वो हिंदुस्तान में बनी है, केरल में बनी सबसे पहली। ये मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा, अगर किसी को लगता है कि इस्लाम भारत से गायब हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। इस्लाम हमारा हिस्सा है और आगे भी हिस्सा रहेगा। सर, तो ये क्या मुस्लिम्स की तरफ एक बहुत बड़ी एक ड्राइव है कि भैया आप सब लोग मेन स्ट्रीम में आ जाइए, आरएसएस एंटी मुस्लिम नहीं है, इस तरीके से एक इंटेंस ड्राइव जो अभी चल रही है। मोहन भागवत जी का शायद ये 4था या 5वां भाषण है इसको लेकर के। अब आप बताएंगे इसके बारे में, उसके बाद में गुरजोत सिंह कीर साहब के पास मैं जाऊंगा। बहुत जी। नम्रता पूर्वक इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। बोलिए सर। सर, बात ऐसी है, जी हमारे भारत का स्वतंत्रता का जो इतिहास है, जो हमारे सामने है, उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद अभी हम अमृत महोत्सव मनाए, जी। 75 साल हो गए, और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अलग अलग देश जिस तरह से आगे जा रहे हैं, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से समस्याओं का सामना हम सब लोग कर रहे हैं, फिर वो गरीबी होने दो या कोई वातावरण का होने दो, या कोई भी सामना करने के लिए कौन से देश आज पूरी तरह स्थिति में है। हमारी भारत की विशेषता है कि हमारा भारत का स्वतंत्रता की जो शताब्दी 2047 में हम 22-25 साल बाद मनाएंगे, तो हम विश्व में हम 1 नंबर होने के लिए जो प्रयास हमारे हो रहे हैं, ये प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हमने बोला है, सबका प्रयास बोला है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सब में सब आते हैं। हमने कोई भी योजना, कोई भी कितने भी आरोप होने दो, लेकिन एक भी योजना भारत में हमारे सरकार ने धर्म के आधार पर की नहीं है। जहां हमारी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये पूरे 140 करोड़ लोग ऐसा बोलकर हमारे प्रधानमंत्री चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। तो मोहन जी भागवत जी ने इसलिए, जब हमको विश्व गुरु बनना है, दुनिया में 1 नंबर होना है, तो हम सिर्फ आर्थिक विषय में या पॉलिटिकल विषय में, सब्जेक्ट में हम अगर 1 नंबर होंगे तो इतना पूरा नहीं होता है, इसमें पूर्ति नहीं होती है। हम सब समाज को जब जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, वो सारे भारतीय लोग भारत के विकास के बारे में सोचेंगे।
एक आत्मनिर्भर भारत, wonderful. So एक can I go विकसित to, भारत, Gurjeet जब हमको Singh की सामने साहब? जाना है, हाँ देखो, एक एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आपने अगर देखी होगी तो भारत जी, के बिल्कुल। विकास के लिए हर एक पॉलिसी जी है। साहू जी साहब, मैं आपके पास इसमें कोई- वापस आता हूं। कैन आई गो टू गुरजोत सिंह कीर साहब? कीर भागवत साहब जी इज नॉट ने स्पोकन। जो चर्चा की है, ये सारा भारत एक होने के लिए जी, हमको दुरुस्त बात। एक दिशा से चलना होगा। एंड ही सेड इट ऑन अगस्त कहकर उन्होंने ये 28। शुरुआत की है। 28 अगस्त को भी उन्होंने भाषण दिया था, 9 सितंबर को भी दिया, उसके पहले भी दिया। बहुत मतलब आई बीन फॉलोइंग हिम नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। गुरजोत सिंह कीर साहब, वो आपको क्या लगता है इसके बारे में? जैसे इंद्रेश कुमार जी जो हैं आरएसएस के, बाकी सब लोग जो हैं, वो जो आउटरीच टुवर्ड्स मुस्लिम्स जो भी चल रहा है एंड अदर माइनॉरिटीज आरएसएस का, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप, गुरजोत सिंह कीर साहब? सर आरएसएस का एक बैकग्राउंड समझना थोड़ा, पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले की बात करूँ तो यस, देवर ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। आरएसएस ने हमेशा हिंदुइज्म की बात की, पर पिछले 10 साल से आरएसएस की मैं जो देख रहा हूँ कि कब कुछ बोलते हैं कब कुछ बोलते हैं। पहले 75 ईयर्स की बात की कि रिटायर होना चाहिए, फिर कहते हैं कि वो मोदी जी के लिए लागू नहीं है, फिर उसके बाद में बीच में बात निकली कि मुसलमान अपने हैं, और इलेक्शन के टाइम पर तो अभी भी है सर, कटेंगे अभी भी कटेंगे बात के करें नारे चल रहे थे। जी। तो किधर ना किधर ये आरएसएस जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट किधर ना किधर मैं चाहता हूँ और विनंती भी है कि आरएसएस थोड़ा पॉलिटिक्स बीजेपी से खास करके दूर रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि सबका भला करना, लोगों को साथ लेकर चलना, और आरएसएस इज एक्चुअली अ हिंदू डोमिनेटेड एंड ऑल्सो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदुओं के लिए उनको काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, और हमारी शुभकामना है कि भागवत साहब और अच्छा काम करे, लेकिन थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहे तो देश के लिए भी वो अच्छा रहेगा। Now I want to ask you, गुरजोत सिंह जी, नाउ आप एकनाथ शिंदे साहब के साथ हो, जन सुरक्षा कायदा में कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में हंगामा कर दिया है, मोर्चा, धरना, प्रदर्शन, हर जिला, हर तालुका, हर वार्ड में। तो किस प्रकार से आप देखो जन सुरक्षा बिल, क्या ये बिल लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली उठा के जेल में डाल देंगे? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ संविधान में जो गारंटीड है, उस चीज को नष्ट करने के लिए ये कायदा लाया है। किस प्रकार से देखते हो आप? जन सुरक्षा बिल में कांग्रेस का मेजर आंदोलन है, राहुल गांधी जी ने कहा इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में हंगामा कर रहे हैं। गुरजोत जी, नेशनल लेवल पे ठीक है, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा तारीफ भी उनकी थोड़ी बनती है, बट महाराष्ट्र में कांग्रेस तो सर खत्म ही हो चुकी है। मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस ना के बराबर है, क्योंकि लीडरलेस ये कम्युनिटी कांग्रेस एक लीडरलेस पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। पहले होता था कि देश के सबसे अच्छे नेता महाराष्ट्र से आते थे, कांग्रेस से आते थे। आज वो एक ढलता टाइम दिख रहा है कि राष्ट्रवादी के पास नेता है, शिवसेना के पास नेता है, बट किधर ना किधर कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई चेहरा भी खास नहीं है, और किधर ना किधर वो लैग भी कर रहे हैं। तो भले पूरे इंडिया में वो आंदोलन, मुझे नहीं पता आगे क्या उसका आउटकम आता है, बट महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के साहब को स्टार्टिंग में बहुत गालियां पड़ी। आज आप देखो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब जब जाते हैं तो उनको गरीबों का नेता कहा जाता है। आज ही की बात है, आज जब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो एक सेरेमनी चल रही थी, तो वहां पर श्रीकांत जी शिंदे साहब स्टेज पर गए, तो श्रीकांत जी शिंदे साहब को नीचे से मोदी जी ने आवाज मारी, काय भाऊ। और वो टाइम पर ये देखकर अच्छा लगता है कि जैसे, वेरी सॉरी टू से, हमारे दोनों जो पैनलिस्ट है आज काफी सीनियर है मुझसे एज में, बट जिस प्रकार से वो बीच में 5 मिनट लड़ रहे थे, तो सर किधर ना किधर पॉलिटिक्स ने आज देश को इतना बांट दिया है कि दो पार्टी के लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते, दो धर्मों के लोग एक साथ आपस में डिबेट में इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो जो गुस्सा होता है, निरुपम जी ने केस फाइल कर दिया है, निरुपम जी ने केस फाइल कर दिया संजय राउत को कि नेपाल जैसे स्थिति यहाँ पर आ सकता है। ये सर नहीं कहने आएगा पर सर, इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया में लोग पढ़े लिखे हैं, और इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखो कि हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, और हमारा जो कायदा कानून है सर, नेपाल इट वाज अ मोनार्की, वो एक मोनार्की में थी, उसके बाद में फिर वो राजाओं के जो एक दौर से गुजर के डेमोक्रेसी में आई, तो इंडिया वाज ऑलवेज अ डेमोक्रेसी। तो शायद थोड़ा पिछले 10 सालों में रिलीजन को लेकर हेट बढ़ा है, पर 10 साल पहले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थे,
आज भी एक ही है, बट फिर सर, आगे भी कहीं एक ना कहीं रहेंगे। सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से सर आगे भी एक रहेंगे, ये कुछ नहीं है। उनको बांटा अंदर गया। अंदर से दोनों की बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। लेकिन निजामुद्दीन रईस साहब के पास जाने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप तीनों लोगों के और नेशन नाउ के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने। बाय द वे, एंड गुरजोत सिंह कीर साहब, आई मस्ट टेल यू दिस, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट आई नीड टू टेल यू दिस। आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द आरकेवी शो, फर्स्ट इन मुंबई, देन लेटर ऑन इन सहारा। सबसे पहले ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह कमिट किया, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ क्राइम दैट आई हैव कमिटेड, बाय द वे, कन्फेशन दे रहा हूं आपको। मैं पहला शख्स था जो सैटेलाइट चैनल पे द आरकेवी शो के दौरान एस्ट्रोलॉजर्स को लेके आया न्यूज चैनल्स पे, ये मेरी देन है। उसके बाद मैंने सबको नमस्कार कर दिया, बट ऑल द सेम आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी जो चंद्रग्रहण लगा ना सर, इतना बड़ा चंद्रग्रहण, लक्ष्मण साहू जी साहब सुनने वाली बात है, निजामुद्दीन रईस साहब सुनने वाली बात है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, सबकी विकेट गई सर, सब लोग चले गए, चंद्रग्रहण जो है सबको खा गया। मतलब ये क्या हो क्या रहा है। और निजामुद्दीन रईस साहब, मुझे मालूम है सौजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड निजाम साहब से बात कर लूं प्लीज। निजाम साहब, यहां पर यह भी कहा जा रहा है, छोटी सी बात है, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो नेपाल में हो रहा है उसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है। दिस इज पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग जो टूनिसिया में शुरू हुआ था 2017 में, वो मतलब, और उसके भी पहले इनफैक्ट 2013 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टूनिसिया में, लीबिया में, अपना यमन में, सीरिया में, उसी प्रकार सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पहले श्रीलंका में सरकार गिराई गई, फिर बांग्लादेश में गिराई गई, फिर अब नेपाल में गिराई जा रही है। तो ये एक सीआईए की प्लेबुक है कि किसी भी तरीके से आप जो हैं द्वेष भावना पैदा कीजिए लोगों में, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी चीज के आधार पर। तो आपको लगता नहीं है निजाम साहब के भारत को जरा सतर्क रहना चाहिए? क्या भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग सक्षम हैं, बहुत शक्तिशाली हैं हम लोग, लेकिन फिर भी सतर्क जरूर रहना चाहिए हमको। निजाम साहब आप बताएं। सर, आप ही अभी कह रहे हैं कि सीआईए जो है इसके पीछे काम कर रही है। सीआईए किसकी एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है ना जी। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी उछल उछल के जा रहे थे अमेरिका। मेरे दोस्त, मेरे ट्रम्प, उनके लिए पूजा कर रही थी आरएसएस के लोग, मंदिरों में पूजा कर रहे थे कि भैया आपकी बार, अगली बार ट्रम्प सरकार। ट्रम्प ने क्या दिया हमको? हमारे देश को नुकसान ही किया ना। मैं ये इसलिए नहीं कि वो उनके बात उनकी वो सुन लेंगे, लेकिन एक धारणा अगर आप किसी चीज के लिए बनाएंगे तो आदमी आपके अगेंस्ट बात करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में सीआईए ये करवा रहा है, तो इसका मतलब है सर ऐसी बातचीत चल रही है, असली जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातचीत चल रही है। पहले बात आ रही थी कि शायद चाइना इसके पीछे, जो अब बात बातें आ आ रही रही है है, क्योंकि पैटर्न इमर्ज कर रहा है ना सर, एक पैटर्न। जी, दूसरी चीज, अभी कीर साहब ने एक बात कही कि महाराष्ट्र में जो है लीडरशिप नहीं है। जी, कीर कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, सर सुनिए ना, कीर साहब, जिन दोनों पार्टियों का आपने जिक्र किया वो दोनों पार्टियां आपकी क्षेत्रीय हैं, तो उनकी लीडरशिप क्षेत्रीय है। हमारी पार्टी क्षेत्रीय नहीं है। हम हारने के बाद भी 100 सांसद रहते हैं, और 77 में भी हारने के बाद जब लोगों ने यह कहा था कब देश में कांग्रेस रिटर्न नहीं आएगी, तब उसके बाद भी 400 लोग आए। तो हम उस बहस पे नहीं जाते। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप किसी एक आदमी को थोपिए मत। अगर जनता का दिल चाहता है किसी को बदलाव करना है तो बदलाव कर सकती है, पॉलिसी इसीलिए बनती है। तो आपके जो लीडरों का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनके अपने लीडर आपको रोड पे दिख रहे हैं। अगर वो बात कोई चीज महाराष्ट्र के राज्य के हित में करेंगे तो मजबूत करेंगे, लेकिन जैसे अभी बीजेपी है या कांग्रेस है या और जो बड़ी पार्टी है, उनकी लीडरशिप के लिए जो भी डिसीजन होता है वो ऊपर जाके होता है। तो लीडरशिप का जब आंकड़ा देखा जाएगा तो ऊपर से देखा जाएगा। दूसरे, अभी नाम्बियार साहब ने एक बात कही कि संजय निरुपम कोर्ट में गए, तो इनको अच्छे से याद होगा, मैं निरुपम के साथ पत्रकारिता कर चुका हूं। वो जब भी एडिटर थे तो मैं भी एडिटर था किसी अखबार। उसके बाद जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ बात किया, और उस वक्त सारे बीजेपी के लोग और सारी मीडिया उनके अगेंस्ट हो गई। तो आज वो राष्ट्रभक्त कैसे हो गए? आप विचार किसी के नहीं बदल सकते। मैं उस वक्त भी कहता था
कि इनके अंदर चड्डी अभी भी है अंदर से। ये मेरे स्टेटमेंट है, पढ़ सकते हैं। तो जब कोई लीडरशिप का विषय आता है तो क्षेत्रीय लोगों की अपनी अपनी, जैसे बाला साहब ठाकरे जब यहां हिंदुस्तान में थे, जब जीवित थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर उनको इंदिरा गांधी से भी लड़ना पड़ा तो मजबूती से खड़े रहे। उनका अपना एक विषय इसीलिए था कि वो महाराष्ट्र के अलावा दूसरी बात पर, दूसरी पॉलिटिक्स पर वो बात नहीं करते रहे। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके जो विषय हैं वो जो है नेशनल लेवल के विषय होते हैं। उनमें बहुत सारी बार ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी को नुकसान हो जाए, किसी को ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन उसी बदलाव के लिए हर जगह 5 साल 10 साल के ये जो चुनावी गणित है उसी लिए है। वरना फिर एक ही आदमी अमर अजर हो जाएगा कि भाई हम अमर हो गए, 100 साल हम ही रहने वाले। जनता जो है वो ताकतवर है, किसी भी राज्य की हो, किसी धर्म की हो। अगर सियासतदान उसके हित की बात नहीं कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसको बदला जाना ही है। तो इसके लिए कभी भी किसी भी लीडरशिप को, मैं किसी लीडरशिप को कभी चैलेंज नहीं करता, क्योंकि हर लीडर को यह अधिकार है कि अपनी पार्टी की बातों को रखे। हम लोग मजाक में देखते थे आप पार्टी के लीडर केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल अकेले अपने दम पे 2 राज्यों में सरकार बना के दिखा दिया। ये आपके सामने हुई ना किर साहब, ये घटना कभी हमने भी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल होगा। जनता खड़ी हुई और उसको बना दिया। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं राजनीति में। निजामुद्दीन साहब, वोट चोरी, राहुल गांधी जी लगातार आरोप जो कर रहे हैं। कल मणिपुर में जा रहे प्रधानमंत्री, मगर राहुल गांधी जी का कहना कि वो वोट छोड़ दो, वोट चोरी की बात करो। राधा कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट चोरी हो गया, वहां पर भी वोट चोरी हो गया। कृष्ण का चुनाव, सुनिए सर, ये पब्लिक का इलेक्शन नहीं है। पूरे देश को पता है कि उनके पास जितना सांसद हैं, कांग्रेस और उनके एलआई के पास 100 सांसद कम है, ये पहले से पता है ना। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इनकी नाक में नकेल डाल दिया। इनको ये कोशिश करनी पड़ी दूसरों के सामने भीख मांग करके, भैया क्रॉस वोटिंग करो। क्यों गए आप क्रॉस वोटिंग? मगर वोट चोरी का आरोप, वोट चोरी का आरोप कहां? इसमें वोट चोरी का हो गया, वोट चोरी का हो गया। सुनेंगे पूरी बात। जब उनको पता है कि वो आराम से जीत सकते हैं, उनके पास 100 सांसद एक्सेस हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सांसद जनता तो है नहीं को रातों रात आप बदल देंगे। संसद में जो लोग काम करते हैं, राज्यसभा लोकसभा में, वो अपने पार्टी से कमिटेड होते हैं। अब जो जिस तरह की चीजें, जब आप राज्यसभा के उपाध्यक्ष के लिए आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप वोट फोड़ लीजिए, तो वो चोरी हुई ना। आप मुझे बताइए कि जब आप बहुमत में हैं ऑलरेडी, और 1-2 सीट की बहुमत नहीं है, 100 सीट आपके पास एक्सेस है। जब 100 लोकसभा में और राज्यसभा में आपके पास 100 नंबर ज्यादा है, तो आपको करने की क्या आवश्यकता है? सीधा चुनाव में जाइए। और राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि 3 इलेक्शन कमिश्नर ने जो इस देश में इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, वो अटल जी की भी सरकारों में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तीनों ने जस्टिफाई किया कि राहुल गांधी करेक्ट हैं। ये जस्टिफाई किया कि नहीं? आपके चैनल पे मैंने सुना, जस्टिफाई किया ना। तो आप इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, जिन बातों को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं माना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया उठा के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आपको लागू करना पड़ेगा। तो जो चीज, ये लोकतंत्र के माने क्या है? अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे फिर तो डिक्टेटरशिप हो गया। सौजी साहब के पास जाएं, लक्ष्मण सौजी साहब से पूछ लेते हैं। सौजी साहब, मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, एक बहुत बड़ा ओकेजन है, मगर कांग्रेस, राहुल गांधी जी फिर बोल रहे हैं कि मणिपुर छोड़ दो, ये राधा कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट में वोट चोरी हो गया, उस पर बात करो। तो किस प्रकार, क्या वोट चोरी हो गया? मणिपुर भी है, वोट चोरी भी है, क्या चल रहा है सौजी साहब? अब जो चर्चा चलती है, बजाज साहब ने एक मुद्दा ऐसा निकाला था जी, भारत के जो पड़ोसी देश है, जिस तरीके से वहां स्थिति निर्माण हो रही है, तो हमने सतर्क रहना चाहिए जी। ये पूरी आज के पूरी चर्चा में, ये चर्चा में जैसे पंजाब का संकट का चर्चा था, और ये अभी दूसरी चर्चा, ये गहराई से होनी चाहिए। इसको हेल्प कौन कर रही है स्थिति बनने के लिए?
बाहरी शक्ति जिस तरीके से लंका में भी हुआ, बाद में बांग्लादेश में हुआ, और अब नेपाल में पाकिस्तान को अस्थिर करके रख दिया है ऑलरेडी, म्यांमार और आगे अभी नेपाल में। ये जो भारत के पड़ोसी देश में जो होने जा रहा है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, इसको मानना पड़ेगा। हमारा भारत ताकतवर जब होने जा रहा है तो भारत की ताकत कम करने के लिए जो जो प्रयास होने जा रहे हैं उसी का एक ये षड्यंत्र है। और चुनाव में भी यही होता है। ये जो वोट चोरी का मामला है ना, ये कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये बाहरी षड्यंत्र है, ये देश के बाहर का षड्यंत्र है। और ये सही वक्त पर सही मायने में ये प्रसिद्ध होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जॉर्ज सोरोस का आना और उनका अंतर्भाव होकर हमारी सीटें गिरना और ऑपोजिशन की सीटें आना, ये कोई लोकतंत्र नहीं था, ये वोट चोरी से भी, ये तो डकैती थी। ये डकैती दरोडेखोर के साथ जब मिलकर जाते हैं, ये बाहरी षड्यंत्र, इसको रोकना होगा। ये जो हमारा शहरी नक्सलवाद है, भारत में जो जो आंदोलन होते हैं, जो भारत की राष्ट्रीय नीति पर जो जो उनको खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, उसकी साजिश, उसका षड्यंत्र, ये हमेशा बाहरी ताकतों से होता है। और बाहरी ताकतों को हेल्प करने वाले जो हमारे यहाँ के देश के गद्दार है और जो विपक्षी दल के नेता है, उनके तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये लोकशाही के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर हमारे देश के खिलाफ यहां कुछ भी आंदोलन करेंगे, देश के खिलाफ चाले चलेंगे, देश की पूरी व्यवस्थाओं को बदनाम करेंगे, चुनाव आयोग को बदनाम करो, ईडी को बदनाम करो, न्यायालय को बदनाम करो। ये जो साजिशें है ना, ये साजिशें विपक्षी दल, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये बाहरी देश की जो षड्यंत्र है, उसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और जनता जाग उठी है, जनता इसलिए मोदी जी के साथ में है कि वो देश के साथ है, इतना ध्यान रखो। जी दुरुस्त बात है, लेकिन ये क्या है कि प्लेबुक तो पहले देख चुके हैं ना सर हम। लक्ष्मण सौदी साहब, जो आपने अभी बात कही है साहब, वही बात है, ये पहले देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे मिलिट्री के जो ऑफिसर लोगों ने कहा कि ये जो हो रहा है, इसके पीछे साजिश किसकी है, इसके पीछे हाथ किसका है। जो जो आतंकवादी हमले हमारे देश में हुए, उसके साथ देश के कुछ गद्दार मिले हुए थे, ये हम नकारना नहीं जा सकता इससे। और उन गद्दारों को ढूंढ कर निकलना, यह हमारे लिए सबके प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके आगे तो हम अच्छी तरह से जी सकेंगे, अच्छी तरह श्वास ले सकेंगे। लक्ष्मण सौदी साहब, गुरजोत सिंह कीर साहब एंड निजामुद्दीन रहीम साहब, फैक्ट रिमेन्स, Tunisia, Syria, Libya, Yemen, all saw regime changes. Same pattern. क्या पैटर्न है? सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाए, आपस में लड़ाया जाए, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष पैदा किया जाए, and everybody comes out on the street. So is the case with Sri Lanka, so is the case with Bangladesh. उसके पहले पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान को हटा दिया गया. Let's be very clear. Now the thing is happening in Nepal. My point is we have to be very very careful. ये कहा जा रहा है कि ट्रिगर ये था कि सोशल मीडिया एप्स जो थे थोड़े बहुत बंद कर दिए गए, बट दैट इज ओनली एन एक्सक्यूज. दिस थिंग हैज बीन प्लान्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको भी मालूम है सर, गुरजोत सिंह कीर साहब, निजाम साहब, लक्ष्मण सौदी साहब, कोई पॉलिटिकल एजिटेशन स्पॉन्टेनियसली नहीं होती है, एकदम नहीं आ जाते लोग बाहर, एकदम नहीं आ जाते. वहां पे पोस्टर भी छप जाते हैं, लोग जो हैं लाउड स्पीकर भी ले आते हैं, गाड़ियां भी आ जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है. उसके लिए पैसा लगता है सर, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन लगती है. अभी मणिपुर में जो शस्त्रास्त्र मिले मस्जिद में, ये देखने लायक बात है, इसके सोचने वाली बात है सर. इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे. जो सर ये लंबा हो जाएगा डिस्कशन. ये कौन सी डेमोक्रेसी है सर? ये सरकार किसकी है? उसके लिए कोई किसकी है? एक भी आदमी ऑपोजिशन के बारे में बोलता नहीं है. मणिपुर में जो शस्त्रास्त्र मिले, उसके लिए ऑपोजिशन लीडर ने मुंह पे पट्टी बांधी है. तो निकम्मों की सरकार है. आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं गए 2 साल पहले? अभी तुमको मालूम होगा, ये निकम्मों की सरकार है, आप देश को ठिकाने पे लाने वाली सरकार है. बात करते हो यार. चलिए, ठिकाने पे लाने वाली सरकार. After the Prime Minister's visit, gentlemen, thank you very much. I am so happy that all of us are agreed at least on one thing, कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है. सर
एक चीज पे सबकी एग्रीमेंट है कांग्रेस कि पूरा धर्म देश के लिए पंजाब के साथ आप खड़ा है। आप ये शांति पक्का से है। रहो, आपको फिर हम लोग आराम से भेजेंगे, आप चिंता मत करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच कांग्रेस जेंटलमैन। वाले I love this. I could go on forever. This is so entertaining. लक्ष्मण सौजी साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब की जो बहस होती है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस वालों को उनकी छवि I मालूम होगी। really absolutely love it. छोड़ेंगे आपको दो हाँ, हाँ, जहाँ हाँ। से आप बिहार आए में थे देखो, वहीं आपको वापस पहुंचाएंगे। बिहार में देखो, चलिए बिहार में जेंटलमैन, पंजाब थैंक यू, क्या होता है। थैंक यू जेंटलमैन, बिहार थैंक में यू। बिहार सुपरा क्या साहब हो अभी जाएगा। ऑफिस देखना चालू निजाम करो। साहब बिहार- नमस्कार, बिहार की जय बात हिंद। को बाद में बांध देख लीजिए देखेंगे। साहू लक्ष्मण साहेब। सौजी साहब नमस्कार, मोदी निजाम भाई, जय हिंद, जय बिहार हिंद। में- बिहार में- हाँ, गुरजोत बिहार सिंह में- जी सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ once again साधुवाद टू यू सर। आपने जो काम किया पंजाब में, मैंने खुद देखा, इंस्टाग्राम में आप पोस्ट कर रहे थे रेगुलरली, आई वाज वाचिंग, इट वाज रियली फैंटास्टिक, ग्रेट वर्क सर, रियली एंड ट्रूली वन, योर फादर वुड बी सो प्राउड ऑफ यू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। गुरजोत सिंह कीर साहब सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, थैंक यू। और भारत निजामुद्दीन माता की जी जय। और साहूजी साहब जब भी आता है बहुत हिट होता प्रोग्राम, अरे जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त हिट होता है। मैक्सिमम व्यूअरशिप। साहब साहब आप दोनों की दंगल के चक्कर में हमारा फायदा हो जाता है। सौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 व्यूअर्स को बहुत मजा आता है कभी इसमें। गलत बात करते नहीं, हम तो आपके हम- साथ काम हम करके देश के 20 साथ साल गद्दारी पत्रकारिता नहीं में करते रहे हैं कभी। ना। हम साहू देश के साहब को साथ गुस्सा आ वफादार जाता हैं। है, साहू साहब जो है कांग्रेस हाँ, के हम इसमें देश के Thank you very much, सौजी साहब। हम नमक हराम नहीं है। मोदी स्वयं कांग्रेस में थे। चलिए हो गया सर, हो गया मोदी अभी स्वयं कांग्रेस सर, अभी में टाइम थे। खत्म हो गया। ये कांग्रेस की देन है कि देश को वो लीडरशिप कांग्रेस की देती है। बात मत बोला आप निजाम भाई, अभी चोरों क्यों? की कांग्रेस है सब। अरे आप चोरों के सरदार आप हैं, पूरा अरे डकैती आप सारी चोरों की बीजेपी तो कांग्रेस है अभी डाकुओं की से। पार्टी ना। देशद्रोही कांग्रेस, बीजेपी देश डाकुओं की की लुटेरी ही पार्टी कांग्रेस, है। देशद्रोही कांग्रेस, आज जिस तरह देश के का खिलाफ लूट कांग्रेस। अपलोड करके पैसा जमा कर रही है बीजेपी, देशद्रोही, ये सिर्फ देशद्रोह आपके तुम्हारे पास ही है। खून में। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू, जय सिया राम। That was nice. Each time Lakshman Saji Saab and Nizamuddin Ring Saab confront each other, it is great entertainment. It is wonderful. We don't have to do anything. They just need to shout at Yes, each other. yes, That's it. yes, yes. I hope people heard. At least they heard a little bit of what both of them were saying. But anyway, that is just about it. But one thing is there, Pradeep ji. The fact remains, this could not be just a coincidence. Let's be very clear. The Thailand PM resigns. The French PM resigns. The Nepal PM resigns. The Japanese PM resigns. I mean, come on. Your study of astrology, I mean, you have a very good study of astrology, and when you coinciding events with what happens with celestial events that takes और अभी तो place. सोलर इक्लिप्स होने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी Then क्या है, something- 21 तारीख 20-21 तारीख के आसपास, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है प्रदीप जी। पितृपक्ष का आरंभ हुआ चंद्र ग्रहण के साथ और पितृपक्ष की समाप्ति होगी सूर्य ग्रहण के साथ। अब उसमें क्या होने वाला है जरा, आई डोंट वांट टू अलार्म पीपल, बट ऑल द सेम प्लीज बी वेरी केयरफुल, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर डूइंग व्हाटएवर। इट लीड्स टू फ्रेट टेम्पर्स एंड स्टफ लाइक दैट। लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें हो जाती हैं, तो just be careful, that's all I'm saying. So that's it, that's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दें प्लीज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation. Nation Nation Now. Now. Subscribe to it. प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट और अपने कमेंट्स भी भेजिए और देखते रहें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के समर्थन की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं और हमेशा हम लोग सच दिखाने की यहाँ कोशिश करते हैं। प्रयत्न हमारा यही रहता है कि आप सब लोगों के सामने हम बिल्कुल सच दिखाएं और जो भी इवेंट हुआ है उसका हर पहलू दिखाया जाए आपके सामने। और मैं मानता हूँ सौजी साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब जो हैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग सुन नहीं पाते कि वास्तविकता में वो क्या करें। मैं अगली बार उम्मीद करता हूँ कि दोनों के साथ बात करके ये कहा जाएगा कि भैया आपने अपनी बात ज़रा अगर आप सामने अच्छी तरह रखें तो लोग शायद ज़्यादा अच्छी तरह सुन पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सब लोगों का धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।